Assalamu alaikum. We are coming back after a long break due to Ramzan and other factors as well. So my name is Kiran Amir and I'm the Director of Operations at PARSA ECHO Pakistan Super Hub. I would like to welcome you all to another ECHO session in series of Hepatitis ECHO. It's in collaboration with Pakistan Society of Hepatology. Today's session is case-based discussion with experts, and our expert for tonight is Dr. Zeeshan Ali. Before I introduce you to our expert for tonight's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO based in USA with an objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation, so you can unmute yourself for question or use the raised hand option and chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on our YouTube channel. Link will be shared in the chat box. For CME credits, please contact Uzair, our coordinator. His number is mentioned on the banner. CME credits are affiliated with Zeeshan Medical University. Uzair will share the Google form at the end of the session, which will be active for 12 hours. You are requested to fill it as soon as possible to avail the opportunity of CMEs. For the convenience of the spokes, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English, whatever language you are comfortable in. If you are interested in our publication, please fill the form shared by Uzair at the end of the session. Our expert for tonight, Dr. Zeeshan Ali Junejo, is a fellow of College of Physicians and Surgeons, Pakistan, and currently working as Associate Professor of Medicine at Zeeshan Medical University and Jinnah Postgraduate Medical Center, Karachi. He has been involved with PARSA ECHO Pakistan since the very beginning and been a true ECHO champion. He is the ECHO lead in province of Sindh and has a keen interest in medical education. He is responsible for overseeing all the projects related to Sindh and enrollment of spokes locally. At present, he is Senior Vice President, Pakistan Society of Hepatology. We have two cases today. Dr. Mishal will be presenting the first case and Dr. Amna will present the second case. Now I will hand over to Dr. Mishal. Dr. Mishal. Assalamu alaikum. Yes, we can hear you, Dr. Mishal. Okay. The first case, it's about a 64 years old male presenting with gastric pain and generalized body pains. He took antiviral for HCV, stopped it for 3 months in 2020, and SPR was achieved. In January 23, patient PCR for HCV came back positive, indicating a relapse. Patient also has comorbidities of diabetes, hypertension, and he's a smoker. His endoscopy report from 2021 indicates presence of mild gastritis, and ultrasound abdomen was normal. His blood reports from 27 January show HB 11.3, TLC count was 11.4, platelets 347, ESR was 40, urea 51, creatinine 1.2, bilirubin was 0.4, ALP 32, ASP 41, alkaline phosphatase was 115, GGT 32, albumin 3.7, INR was 1, and APTT 35. And then on 6th May, his liver function tests were normal, and albumin 3.4, INR was 1.2, and then on 16th March, his HbA1c was 9 and alpha fetoproteins are 6.31. I want to ask, how should we manage this patient? Is a creatinine level of 1.2 a cause for concern before initiating antiviral treatment? Thank you, Mishal. A very good relevant case, and there are few red herrings, I must say, which we should be looking when we are seeing these patients. एक तो ये पेशेंट एल्डरली पेशेंट है, जो इसकी 4 महीने पुरानी लैब्स हैं वो बता रही हैं कि पेशेंट शायद सिरोसिस में नहीं है,
लेकिन जो 2 महीने पुराना HbA1c है वो ये भी बता रहा है कि डायबिटिक होते हुए भी ये पेशेंट बहुत अच्छे कंट्रोल में नहीं है। HbA1c 9 का मतलब ये है वी आर नॉट हैविंग ए गुड ऑप्टिमल डायबिटीज कंट्रोल। फिर एक तो खैर ये जो चार्ट आपका बना हुआ है टेबल, इसके अंदर पहले में की आ रही है, वो थोड़ा सा इस वजह से आपको भी प्रेजेंट करते हुए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि मार्च वाली जो है वो थर्ड जो लास्ट कॉलम है उसके अंदर है, और जो मई वाली लैब्स हैं वो इसके सेकंड कॉलम के अंदर है। कमिंग बैक टू दिस, कि जो आपका क्वेश्चन क्रेटिनिन है, डायबिटिक पेशेंट एल्डरली, अब इस एज के साथ 1.2 क्रेटिन में नॉट बी दैट प्रॉब्लम, लेकिन इसकी क्रेटिन क्लियरेंस को जब आप 465 के साथ देखेंगे तो इट में टर्न अराउंड टू बी समवेयर अराउंड, मैं इसको एग्जैक्टली EGFR देखा नहीं था, अगर आप उसको वो मेट कैल्क में डालेंगे इट वुड कम समवेयर अराउंड 60 और 50। So yes, with the diabetes, uncontrolled elderly patient, smoker, one should be looking after the kidney function and following this kidney function. और ज़ाहिर है प्राइमरी प्रैक्टिस के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो इनिशियल स्क्रीनिंग प्राइमरी केयर फिजिशियन की लेवल पर ही होती है, और वहीं से रेफरल जनरेट होता है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी के कॉन्टेक्स्ट में देखना है। कमिंग बैक टू द वायरल एंटीवायरल ट्रीटमेंट, तो अगर आप इसकी मई की देखें, रिलेप्स तो इसको हुआ है लेकिन साथ में इसका अल्कलाइन फॉस्फेट पड़ा है, गामा GT इसके साथ मौजूद नहीं है, लेकिन अल्कलाइन फॉस्फेट का इतना ज़्यादा बढ़ना और ALT का ना बढ़ना इज डेफिनेटली ए पॉइंट ऑफ कंसर्न। वो कि हेपेटाइटिस C के साथ जब हेपेटोमा डेवलप करता है पेशेंट, तो वो हेपेटोमा सिरोटिक लिवर के ऊपर होता है। हेपेटाइटिस B के अंदर हमें ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि मिले, तो विदाउट एविडेंस ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ सिरोसिस पेशेंट कैन हैव हेपेटोमा इन नॉर्मल लिवर, लेकिन हेपेटाइटिस C के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर ये एल्कलाइन फॉस्फेट क्यों इसका इतना ज़्यादा आया है, वो कि जो 2 महीने पुराना इसका जो AFP है अल्फा फीटोप्रोटीन, दैट इज नॉट दैट हाई, क्रॉनिक हेपेटाइटिस के साथ इतना मिल जाता है एलिवेटेड, तो दैट नीड्स इवेल्युएशन, इज इट फैटी लिवर रिलेटेड टू द अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, क्योंकि उसके अंदर भी गामा GT एल्कलाइन फॉस्फेट हाई आते हैं, दे आर द मार्कर ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एज वेल। लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि हम इसको फर्दर वर्कअप करें कि ये पेशेंट हेपेटोमा तो डेवलप नहीं कर रहा, ठीक है ना। फॉर दैट मैटर अल्ट्रासाउंड एक एक्सपीरियंस हैंड्स में या ट्राइफेजिक CT वुड बी रिकमेंडेड। पिव का एक और जो है मार्कर है, सीरम मार्कर है हेपेटोमा का, जहाँ अवेलेबल है वो किया जा सकता है, लेकिन ये है कि इस पेशेंट में पहले डायबिटीज कंट्रोल, सेकेंडली रूलिंग आउट HCC, एंड देन लुकिंग फॉर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एंटीवायरल ट्रीटमेंट। पहले ये दो प्री रेक्विजिट हम पूरे करें, क्योंकि डायबिटीज अगर अनकंट्रोल रहती है दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर ऑफ रिलेप्स और फेलियर टू अचीव SVR। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें डायबिटीज के कंट्रोल को ही देखना है, विद लुकिंग इनटू द क्रेटिनिन कमिंग इनटू द प्ले। तो जो क्रेटिनिन है, अगर ये हमारा क्रेटिनिन क्लियरेंस कम है तो वी हैव टू बी कॉशियस के रीट्रीटमेंट दे रहे हैं। हम जो रीट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में रिकमेंड करते हैं आमतौर पर राइबाविरिन रिकमेंड करते हैं with elderly male with borderline creatinine with lowish EGFR. We have to be careful with the dose of the जो ribavirin और फंक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड इम्पेयर्ड है, तो राइबाविरिन का डोज भी एडजस्ट करना होगा जब भी हम इसकी एंटीवायरल शुरू करेंगे। बट बिफोर गोइंग इनटू द एंटीवायरल आई मस्ट बी लुकिंग इनटू, आई वुड रिकमेंड टू लुक इनटू कि इसका डायबिटीज कंट्रोल के ऊपर थोड़ी मेहनत की जाए, दिया जाए कि इज दिस पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इट्स। जी मिशाल, एनी अदर क्वेश्चन हियर or जी anyone else who have Yes, got? sir. जी ज़ीशान, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में ये टिपिकल एक जो आप पैटर्न देख रहे हो, कुछ तो ये डेट्स जगल हुई हुई हैं, वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी फॉलो अप पेशेंट्स इन क्लिनिक। और हम आइडियल वर्ल्ड में तो बात करते हैं, पर प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि ये आई एम श्योर ये हमारे जिस तरह से जो मैं जो गैप देख रहा हूँ बिटवीन इन्वेस्टिगेशंस, तो ये हमारे ट्रस्ट के क्लिनिक का होगा। ऑलरेडी कुछ रिसोर्स लिमिटेशन होती है, बट हमारे पास क्रिएटिनिन सिर्फ जनवरी का है, और आई एम श्योर इसके बाद हुई होगी, और उसके बाद ये पेशेंट फिर गायब हो जाते हैं, फिर टेस्ट होते हैं, फिर जिस तरीके से आते हैं।
आपसे करना चाहूंगा, एक तो ऑब्वियसली डायबिटीज कंट्रोल है। तो आपने एचसीसी की बात की, अभी हमारे पास मार्च में ये 6.3 है इसका अल्फा फीटोप्रोटीन। तो यूजुअली आपके भी चूंकि बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में जो पब्लिक सेक्टर में इतने पेशेंट्स आते हैं, तो आप कैसे फिर इनको काउंसल करते हो और किस किस तरीके से फिर आगे चलेंगे एज फार एज ट्रीटमेंट एंड अदर थिंग्स आर कंसर्न? अल्फा फीटोप्रोटीन प्रोटीन का जहाँ तक ताल्लुक है, हमें पता है कि अल्फा फीटोप्रोटीन की सेंसिटिविटी 60% तक आती है इन डिटेक्टिंग अर्ली HCC. 40% ऑफ द पेशेंट स्टिल मे नॉट रेज देयर अल्फा फीटोप्रोटीन. इसी वजह से सिंगल मोडेलिटी रिकमेंडेड नहीं है, अल्ट्रासाउंड के साथ स्क्रीनिंग रिकमेंडेड है HCC के लिए, कि वो दोनों मिला के इट गोज अराउंड 80%. बट स्टिल विद द अल्ट्रासाउंड, कि जिसके सारे कैविएट मौजूद हैं कि अल्ट्रासाउंड करने वाला कौन था, मशीन किस तरह की थी, कितना टाइम उन्होंने लगाया, ये सारे कैविएट्स अल्ट्रासाउंड के होते हैं कि 5 मिनट में पूरा एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करने वाले लोगों से आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो HCC सर्विलेंस वाला अल्ट्रासाउंड प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे. तो इस सारे प्रोसेस के अंदर हमें जो है, अगर मैं देखता हूँ कि वी प्रैक्टिस इन टर्शियरी केयर सेटअप, तो हम यहाँ पे CT रिकमेंड करते हैं कि स्ट्रेट अवे अगर एल्फॉस बढ़ा हुआ आ रहा है पेशेंट का, और पेशेंट को जो है रिस्क फैक्टर हमें लगता है, तो वी वुड रिकमेंड के ट्राइफेजिक CT कर लिया जाए. बट अगर ये फैसिलिटी नहीं है, तो एटलीस्ट एक अच्छा अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है, और सीरियल अल्ट्रासाउंड और सीरियल अल्फा फीटोप्रोटीन ज़रूरी है. अगर आपको एक दफ़ा एल्फॉस बढ़ा हुआ नजर आ गया, पेशेंट विद क्रॉनिक लिवर डिजीज, इट्स वेरी कॉमन टू हैव, जिसे कहते हैं ना, राइजिंग अल्काइन फॉस्फेट द फर्स्ट मार्कर ऑफ HCC. बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि डायबिटीज इसमें एक कंपाउंडिंग फैक्टर है, और डायबिटीज के साथ बहुत कॉमन है अल्फा अल्कलाइन फॉस्फेट का रेज आना. रिसेंटली there is a paper in publication, probably we are presenting with 700 patients data of diabetes, in which it is directly related to gamma GT and alkaline phosphate to the rearrangement of HbA1c. तो विद 9 HbA1c आई कैन सी कि डायबिटीज का कंट्रोल होने की वजह से भी ये अल्कालाइन फॉस्फेट बढ़ सकता है इन एब्सेंस ऑफ HCC. जी ख्वाजा परवेज साहब, आपने हैंड रेज किया हुआ था, आपको क्वेश्चन है. अनम्यूट करें अपने आप को, क्वेश्चन करें. आप अनम्यूट करें अपने आप को, ख्वाजा परवेज साहब. Anyone else? मेरा ख्याल है चैट के अंदर there was a, if I can see any question in the chat regarding this question, और किसी ने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो मोस्ट वेलकम. जी जीशान, कमिंग अगर हम इफेक्टिवली रूल आउट कर लेते हैं और वी मेक अ डिसीजन, जिस तरह आपने बात की इस केस में, कि हम इसको सीरियल अल्ट्रासाउंड के साथ फॉलो अप करें डिपेंडिंग अपॉन जो है, तो ट्रीटमेंट के बारे में आप क्या इसके करेंगे? लेट्स से डायबिटीज के ऊपर हम अब एक दो मैसेजेस तो बड़े क्लियर हैं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ डायबिटीज. क्रिएटिनिन हम पे हमें थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे पास क्रिया केयर ऑफ क्रिएटिनिन के वो, अगर ये सारा क्लियर होता है, और तो आप ट्रीटमेंट के बारे में इसको रीट्रीटमेंट इनफैक्ट रीट्रीटमेंट के लिए वी हैव टॉक्ड अबाउट बेसिक जो है कि रीट्रीटमेंट के अंदर कि इफ आई एम ट्रीटिंग दिस पेशेंट, आई वुड इंश्योर कि ये पेशेंट जो है वो डायबिटीज कंट्रोल में हो बिफोर रीस्टार्टिंग द बिफोर एनी रीट्रीटमेंट बीइंग स्टार्टेड टू दिस पेशेंट. एक ये चीज याद रखिएगा, रूल ऑफ थंब है, कैन कंट्रोल डायबिटीज के साथ आप ऐसे भी जो है वो वायरल सप्रेशन बहुत अच्छी मेंटेन नहीं कर पाएंगे. वन, वी हैव एक्सक्लूडेड कि HCC शायद नहीं है विद ऑल दैट, बट कब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्टेज कि ये डायबिटीज के साथ है. तो डायबिटीज कंट्रोल फर्स्ट, उसके लिए अगर आप 1-2 महीने वेट करें, तो अगेन लैब्स जो थोड़ी स्कैटर्ड हैं, लेकिन जो ये बता रही हैं कि पिछले 4-6 महीने की लैब्स के पेशेंट सिरोटिक शायद नहीं है. तो इन एब्सेंस ऑफ सिरोसिस वी हैव गॉट टाइम टू ट्रीट HCV. रीट्रीटमेंट हमने अगर करनी है डायबिटीज कंट्रोल करके, 2-3 महीने का टाइम दे के, एंड वी विल बी स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट. सॉफ्ट टैग इसने ली थी, 3 महीने ली थी, और अभी भी ये सिरोटिक नहीं है, बट री ट्रीटमेंट केस बन रहा है.
तो आई वुड प्रिफर के इन दिस पर्टिकुलर केस कि हम राइबा के साथ सॉफ्ट वेल्पा का कॉम्बिनेशन इसमें दें. वी कैन स्टार्ट इन रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स. जिस तरह हम पब्लिक सेक्टर में बैठे हैं, हमारे पास वेल्पा प्रोक्योर नहीं हो रही होती सरकार से, तो वी स्टिल गिव दीज पेशेंट 6 months with राइबा. That is one other option, but preferred option definitely as per guidelines would be कि आप सॉफ्ट वेल्पा दें. गो की गाइडलाइंस इसको सपोर्ट नहीं करती कि राइबा के साथ दें, बट इन आवर ओन एक्सपीरियंस we always give with राइबा all patients with retreatment protocol. Even in absence of cirrhosis we give ribavirin. तो 3 महीने सॉफ्ट वेल्पा विद राइबा would be my जिसे कहते हैं ना ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन दिस पर्टिकुलर पेशेंट if we have controlled the diabetes and excluded the HCC in this patient. And looking again, राइबा दे रहे हैं तो क्रैट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर नज़र रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी गर्मियों के सीज़न आ रहे हैं, अगर अभी मैं शुरू करने लगा हूँ तो लेकिन डिहाइड्रेशन के साथ अक्यूट किडनी इंजरी पॉसिबल है, हीमोलिसिस होती है, दैट कैन कॉम्प्लिकेट acute kidney injury in these diabetic patients. These are sensitive kidneys, already borderline पे काम कर रही होती हैं, तो we should be watchful for the dehydration in these patients and encourage water intake ताकि patient जो है डिहाइड्रेट ना हो रहा हो. और ड्यूरेशन कितनी रखना चाहेंगे आप? सिरोटिक पेशेंट नहीं है, राइबा हम ऐड कर देते हैं तो 3 महीने आमतौर पे काफ़ी होता है. अगर ये पेशेंट बॉर्डरलाइन सिरोसिस के साथ होगा, एप्री अगर इसकी 1 से ज़्यादा आ रही होगी, तो आई वुड कीप इट फॉर 6 months इवन विद वेल्पा. अगेन दिस इज नॉट वेरी मच बैक्ड अप विद मोस्ट ऑफ द गाइडलाइंस, बट दिस इज व्हाट आवर एक्सपीरियंस इन पाकिस्तानी पेशेंट्स आर कि जो ये सॉफ्ट टेक्ला को रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो सॉफ्ट वेल्पा को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते. तो एक्सटेंडिंग द ड्यूरेशन फॉर 6 months in cirrhotic patient is retreatment group of cirrhotic patient is. लेकिन क्योंकि ये नॉन सिरोटिक पेशेंट है, इसका एप्री हमने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन प्लेटलेट ठीक है, एएसटी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, तो आई एम एंटिसिपेटिंग कि लेस देन 1 ही होगा और ये सिरोसिस में नहीं होगा. तो इन दैट केस आई वुड कीप 3 months विद राइबाविरिन एंड सॉफ्टवेल्पा वुड बी इनफ. जी, आई थिंक आप सही कह रहे हैं. दैट्स व्हाट वी डू. और एज यू आर अवेयर, हम लोग आजकल एक ट्रायल में भी हैं जिसमें विद द यूके ग्रुप उसकी जो प्रोटोकॉल है उसमें जो हैं सॉफ्ट डेक फेलियर्स हैं, तो दे आर गिवन सॉफ्टवेल फॉर 12 or 24 weeks, नो राइबाविरिन. तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ग्रैम फॉस्टर वाज सेइंग कि हमने रिबाविरिन नहीं देनी. आप 12 versus 24 weeks को देखो. तो लेट्स सी हाउ इट गोस. एनी क्वेश्चन? देयर आर पीपल हियर. जी ज़ीशान जी, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग विदाउट राइबा, बिकॉज जो हमारा एक्सपीरियंस है कि राइबा वी मे नॉट लाइक एंड Caucasians generally don't like राइबा and they are very sensitive to the side effects of the राइबा as well. हमारी पॉपुलेशन राइबा बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती है. वेरी फ्यू पेशेंट्स विद हेमोलिसिस एंड acute kidney injury we have seen with राइबा, और जो दूसरे साइड इफेक्ट्स हैं वो भी बड़े मिनिमम से हम देखते हैं. हमारे पेशेंट शायद इसको रेजिलियंट होते हैं. तो राइबा का हमें इतना इशू प्रिस्क्रिप्शन से नहीं आया, बट यस इन वेस्टर्न लिटरेचर राइबा के बहुत साइड इफेक्ट्स और इसकी टॉलरेंस के बड़े इश्यूज रिपोर्टेड हैं. सो दैट कम्स कि ग्रैम फॉस्टर इज नॉट वेरी हैप्पी विद राइबा. लेकिन आई वुड बी इंटरेस्टेड कि ये जो 3 और 6 month का कंपैरिजन है कि हाउ मच इट कैन एक्चुअली जो है ना lead to the cure in HCV. It was difficult to treat patient in Pakistani population. We have seen the Raiba as a rescue in most of the time, but it would be interesting to know. Any other question before we move on to the next case? I think, okay, Kiran, can we move on to the next case? Sure. Dr. Amna, are you ready to present the next case? Hanji. Okay. We can hear you. Can you hear me? Okay. Yes, I can. Okay, thank you. Second case is about a 25 years old female who is lactating mother now, has recently delivered a baby via C-section 22 days ago.
presented with backache, lower abdominal pain, and constipation at the time of her C-section. Her HBs antigen came positive on pre-op labs during then. Now she wants to start her treatment for HPV. Investigations are CBC HB 12.7 on March 2023, TLC 8.3, platelets 299, RFTs were urea 28, creatinine 0.9. LFTs are bilirubin 0.9 on March this year, ALT 0.130, AST 98, alkaline phosphatase 251, serum albumin 3.3, coagulation profile PTINR 15/1.10 March. Serum alpha fetoprotein is 1.8. Workup for B is PCR was detected, viral load 21,40,000, anti-HIV 1 and 2 negative, anti-HTV was negative, HPV antigen was positive on March, anti-HPV was negative. Ultrasound abdomen is normal. Questions are how to manage this patient, how can we reduce the risk of hepatitis B transmission from mother to baby, and what are the guidelines for breastfeeding in HPV positive mother if on ABT? थैंक यू जीशान, इससे पहले कि आप जवाब दें, थैंक यू आमना, टू ऑल द ऑडियंस, ये in a general practice, I'm not talking about a tertiary care gastroenterology unit, लेकिन मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँगा कि if anybody would like to comment here कि वो इस केस को कैसे देख रहा है। जब इससे पहले कि जीशान आपको बताना शुरू करें, ये हिस्ट्री है जिस तरह यूजुअली मिलती है, बाज़ औक़ात आपके पास केस आते हैं, तो आपके ज़हन में क्या क्या सवाल उठेंगे, क्या क्या चीजें क्लैरिफाई करना चाहेंगे? पेशेंट आपके सामने बैठा है, आप उससे क्या पूछना चाहेंगे? एनीबॉडी यू कैन डू वॉलंटियर कि वो किन चीजों पे खटकेगा जिसका कि यार ये क्या हो रहा है इस पेशेंट को? एनीबॉडी हु वुड लाइक टू जंप इन? सर ये जो अस्सलाम वालेकुम सर, जो सी सेक्शन जब हुआ तो उस वक्त उन्होंने स्क्रीनिंग की हुई थी या बाद में की है, ये पूछना था। जी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। इसको पता उस वक्त चला था, लेकिन उस वक्त गालबन इसका डीएनए वगैरह नहीं हुआ था। जी अच्छा, हाँ जी, तो अगर उस वक्त नहीं हुआ तो फिर अब तो मेरे ख्याल में जब ब्रेस्ट फीडिंग इसकी खत्म होगी फिर ही उस वक्त इसका HCV का ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, और हेपेटाइटिस बी जो है उसकी सारी इवैल्यूएशन करनी चाहिए डीएनए वगैरह। चले, एक पॉइंट तो ये आ गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर भुट्टा के। डॉक्टर भुट्टा का ख्याल है कि इसको अभी ऐसे चले, हमारे पास ये पेशेंट है जो स्क्रीनिंग पे पॉजिटिव आई, उस वक्त एज पर हिस्ट्री और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है कुछ इंटरवेंशन नहीं की गई, और अब चूंकि वो ब्रेस्ट फीड कर रही है तो वी शुड वेट टिल शी स्टॉप्स। अच्छा, एनीबॉडी एल्स? अगर फर्ज करें हमारे पास ये पेशेंट आता और डिलीवरी से पहले सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होता तो हम क्या हमें क्या करना चाहिए था या क्या कर सकते थे? एनीबॉडी एल्स हु वुड लाइक टू कमेंट हियर? एनीबॉडी, कोई वॉलंटियर है? इस क्वेश्चन का कोई जवाब देना चाहेगा? Probably there is a case in a chat. We'll discuss after this case. Probably Maria have posted a case. We'll be discussing that. जीशान, मेरे ख्याल में आई लिविंग टू यू, इसमें बहुत सारे कैविएट्स हैं सारे, और आई वुड लाइक कि आप वन बाय वन इसको पॉइंट करें, क्योंकि इट विल बी अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। और क्वेश्चंस को आप क्वेश्चंस का आंसर भी दें और क्वेश्चंस को भी कमेंट करें कि क्वेश्चंस कैसे लिखेंगे। ठीक है,
चलो, थैंक यू। देखिए, the way it is present, it is a real life scenario. अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारे यहाँ कि एंटीनेटल सबसे पहली चीज है कि जब प्रेगनेंसी है तो उसका एंटीनेटल केयर होना चाहिए। उस एंटीनेटल केयर के जो केयर के अंदर जो है बड़ा क्लियर जो है वो इंडिकेशंस हैं कि आपने हेपेटाइटिस बी सी की स्क्रीनिंग जो है वो कब करनी है। सो विद दिस केस गेटिंग बी स्क्रीन्ड जस्ट बिफोर सी सेक्शन शोज कि शायद ये किसी सब ऑप्टिमल किस्म के सेटअप के अंदर जो है ऑपरेट हो रहे थे, क्योंकि इवन इन कराची which is the biggest city, relatively advanced medical setups available, बहुत सारे सेंटर्स में केसेस सिर्फ इस वजह से रेफर कर दिए जाते हैं कि जी हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग पॉजिटिव आ गई है, इसको आप जिना या सिविल ले जाएं। सो दिस इज अनफॉर्चुनेट रियलिटी कि जो हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसके अंदर इतनी जिसे कहते हैं ना वो नॉलेज नहीं है कि हाउ टू डील एंड हाउ टू डिसइंफेक्ट जो हमारे ऑपरेटिव रूम के जैसे कहते हैं सारी की सारी एक्सेसरीज हैं उनको क्लीन कैसे करना है। इवन रिसेंटली आई केम अक्रॉस वन ऑफ द टर्शियरी केयर सेटअप प्रोटोकॉल की HIV अगर पता चल जाए तो उसके बाद जनाब 6 घंटे की ड्यूटी बंद कर दी जाए और सो दीज काइंड ऑफ रियलिटीज आर इन प्रैक्टिस। तो ये इसका सबसे पहले एंटीनेटल ना होना, प्री सी सेक्शन स्क्रीनिंग का होना और उस टाइम के ऊपर सी सेक्शन को प्रोसीड करने की क्या इमरजेंसी सिचुएशन थी और क्या ये पेशेंट इवेल्युएट नहीं हो सकता था उससे पहले। तो ये सारे क्वेश्चन रहेंगे कि इसको पहले हो जाना चाहिए था। जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 है दैट शुड हैव बीन फर्स्ट के प्रिवेंशन के लिए क्या किया जा सकता था पहले। तो प्रिवेंशन के लिए ये कि हम जो है 3rd ट्राइमेस्टर से पहले पहले जो है आमतौर पर स्क्रीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद रियलिस्टिक जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन वाली डिजीजें हैं उनके रिस्क बढ़ता है। तो 3rd ट्राइमेस्टर से पहले जो आप स्क्रीन करते हैं 24 वीक्स या 20th वीक के अराउंड, तो उस टाइम पे अगर ये पॉजिटिव आता है तो उसका वायरल लोड करते हैं और वायरल लोड अगर ज़्यादा आता है तो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए टेनोफोविर को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी शुरू किया जाता है। उस वक्त हेपेटाइटिस मदर को अफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है ये इतना रोकने के लिए दिया जाता है। अगर हेपेटाइटिस उस टाइम पे मौजूद है, मदर को हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो वो उस वक्त शुरू की जा सकती है फॉर द मदर्स ट्रीटमेंट कॉन्टॉक्ट्स। लेकिन हमें शुरू करते वक्त ये पहले पता होना चाहिए जब प्रेगनेंसी में हम शुरू करते हैं तो क्या हम मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए दे रहे हैं या ये हम हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट के तौर पे लिख रहे हैं टेनोफोविर, क्योंकि वो दैट्स द ओनली ड्रग अवेलेबल इन द मार्केट व्हिच इज अप्रूव्ड इन प्रेगनेंसी टू ट्रीट हेपेटाइटिस बी। कमिंग टू मेरा ख्याल है नो दैट कि हाउ टू प्रिवेंट इट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन वंस द डिलीवरी हैज टेकन प्लेस HBIC दिया जाता है और फिर बर्थ डोज वैक्सीनेशन को इंश्योर किया जाता है बच्चे की, ताकि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को कम्प्लीटली रोका जाए। तो प्रिवेंशन के लिए जो चीज़ें हैं वो सबसे पहली चीज़ 12 to 24 वीक्स के दौरान स्क्रीनिंग है। अगर वायरल स्क्रीनिंग पॉजिटिव आती है तो वायरल लोड चेक करें, 20,000 से ज़्यादा है तो इसको टेनोफोविर शुरू करें। और एट द टाइम ऑफ बर्थ वॉट एवर द बर्थ का जो डिलीवरी मोड है वो क्या है, क्योंकि हेपेटाइटिस के लिए डिलीवरी मोड जो है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है कि एक पेशेंट को सी सेक्शन की इंडिकेशन इस वजह से है कि हेपेटाइटिस पॉजिटिव है। दैट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। पेशेंट को सी सेक्शन की इंडिकेशन ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन की वजह से होगी, हेपेटाइटिस की वजह से नहीं होगी। डिलीवरी है या सी सेक्शन है, दोनों सूरतों में बर्थ डोज वैक्सीनेशन और HBIC जो है वो लगाना जरूरी है हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन बच्चे को, ताकि ये इंश्योर करें कि मदर से बच्चे में ट्रांसमिट नहीं हुई। अगर HBIC लग जाता है और फिर उसको पेशेंट को बच्चे को जो है वो वैक्सीनेशन भी लग गई है तो उसके बाद जो है उसको फीड करने में कोई कबाहत नहीं है। पेशेंट को बच्चे को फीड भी करना चाहिए कंटिन्यूइंग विद द एंटीवायरल ट्रीटमेंट, ताकि विद इन अ वीक और 2 आमतौर पे वायरल सेपरेशन इतनी हो जाती है कि जो ट्रांसमिशन है फ्रॉम द मदर्स मिल्क एंड लाइकली हो जाती है प्रोवाइडेड द बच्चा जो डिलीवर हुआ है उसको बर्थ डोज वैक्सीनेशन भी लगी है और उसको जो है HBIC भी लगी है एप्रोप्रिएट डोज के साथ। So that was the question answering the how to prevent the transmission of hepatitis B from mother to child. Breastfeeding से related I have talked a bit कि अगर HBIC लगी है और बस डोज वैक्सीनेशन हुई है तो एंटीवायरल ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हुए हम जो है बच्चे को जो है फीड करवाना पे कोई कबाहत नहीं है।
एंटीवायरल ट्रीटमेंट जो टेनोफोवीर है, इट हैज फाउंड टू बी सेफ, क्योंकि आप लोगों को शायद पता होगा और अदरवाइज के टेनोफोवीर इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एंटी HIV थेरेपी एज वेल। तो इसका बड़ा डेटा मौजूद है प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर और लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर HIV का, किसकी सेफ्टी के साथ। तो फॉर दैट कॉन्फिडेंस वी कैन से दैट इट कैन बी कंटिन्यूड ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, बट birth dose vaccination and HBIC at the time of birth is very important factor कि जिसको ये इंश्योर करने के लिए कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन नहीं हो रही। नाउ कमिंग टू हाउ टू मैनेज दिस पेशेंट, जो ये क्वेश्चन आपका है कि इस पेशेंट को अब कैसे मैनेज किया जाए। अब तो ये डिलीवर हो चुकी, अब इसकी लैक्टेशन का क्वेश्चन है, वो हमने बात कर ली कि अगर इसको बर्थ डोज वैक्सीनेशन लग गई है, नहीं लगी थी तब भी HBIC और बर्थ डोज वैक्सीनेशन का मैक्सिमम विंडो फॉर पोटेंशियल बेनिफिट्स रिमेन 72 आवर्स, वरना वो लूज कर गए। आइडियली इट शुड बी इन फर्स्ट 12 आवर्स। ठीक है, तो फर्स्ट 12 आवर्स के अंदर ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। तो अब ये पेशेंट जब आप मैनेज कर रहे हैं तो इसमें आप देखें ALT बढ़ा हुआ है इसका और हाई वायरल लोड के साथ है, ई एंटीजन पॉजिटिव है। नाउ यू हैव टू लुक इनटू दिस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के। एक तो ये है कि अब ये जो पॉजिटिव आया है, हमें ये देखना है कि ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस है या ये एक्यूट हेपेटाइटिस बी तो नहीं डेवलप किया हुआ। जो भट्टा साहब का क्वेश्चन था कि क्या ये पहले या बाद में सी सेक्शन के साथ, आई थिंक इट वाज इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि वांटेड टू आस्क फॉर दैट मैटर। तो HB कोर IgM, यस दैट्स वन थिंग व्हिच आई वुड सी के लाइक टू सी कि ये एक्यूट है या नहीं, क्योंकि अगर एक्यूट है और इफ आई थिंक कि एक्यूट हेपेटाइटिस बी है तो आई मे हैव क्वेश्चंस के इसको मैं स्टार्ट करूं या ना करूं। विद ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वी टेक इट एज ए क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, और क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में रेस ALT विद हाई वायरल लोड, ई एंटीजन पॉजिटिव, इट्स वारंट्स ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट के लिए अगेन विद ब्रेस्ट फीडिंग मदर प्रेफरेबल ड्रग वुड बी द टेनोफोवीर। इसको बैकएक वगैरह की हिस्ट्री है, लैक्टेटिंग मदर है, तो आई वुड लाइक टू स्क्रीन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस इन दिस, क्योंकि जो टेनोफोवीर का एक साइड इफेक्ट है, ये दवाएं जो हम हेपेटाइटिस बी के लिए देते हैं वो लॉन्ग टर्म चलती हैं, 3 से 5 साल चलती हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स पे नजर रखनी होती है। वन ऑफ द पोटेंशियल साइड इफेक्ट इज ऑस्टियोपोरोसिस। तो बैकएक की हिस्ट्री वाले पेशेंट में आई वुड लाइक टू गेट द DEXA स्कैन डन एज वेल टू लुक फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस। वो कि यंग पेशेंट है, अनलाइकली है, लेकिन उसको बेसलाइन डॉक्यूमेंट करने के लिए, ताकि उसको आगे मैं फॉलो कर सकूं लेटर ऑन अपने फॉलोअप्स के ऊपर। तो टेनोफोवीर वुड बी ए ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस पेशेंट, और हाई LT के साथ हाई वायरल लोड और ई एंटीजन पॉजिटिव, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट इन दिस पेशेंट। Thank you, Zeeshan. I think you very excellently completed this case. It's always difficult, और हम लोग यूजुअली इनको करते हैं, और आई डोंट रिमेम्बर दिस गर्ल, लेकिन जब हम थोड़ा सा कुरेते हैं तो पता लगता है कि 4 साल पहले भी था। और इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि एंटीनेटल में इसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं किया, क्योंकि टाइम वो था जिस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटीनेटल पे इसको किया जाए। और उस वक्त अगर आपको ALT नॉर्मल भी मिले, यूजुअली अगर हमारे क्लिनिक में आते हैं सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, ALT आपको लेट से 18 भी मिल रहा है, तो इवन देन उसका वायरल लोड इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू सी कि हमने उसको जो उसके लिए वायरल सप्रेशन के लिए और रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन कम करने के लिए टेनोफोवीर देनी है कि नहीं देनी। और TDF इज द ड्रग जो अभी तक अप्रूव्ड है प्रेगनेंसी सिचुएशन में, लास्ट ट्राइमेस्टर में देते हैं। Any question in this regard? एक क्वेश्चन चैट में भी है, अभी उस पर भी आते हैं, लेकिन इस केस से रिलेटेड किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो प्लीज अनम्यूट करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ये बैकएक की बात हो रही थी, इस पेशेंट के बैकएक की बात हो रही थी, तो डॉक्टर साहब ने ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ पॉइंट किया। मेरा ख्याल है कि ये यंगर पेशेंट्स जो डिलीवरी जिनकी सी सेक्शन वगैरह हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस में तो कम ही होगा। उसकी बड़ी वजह स्पाइनल इंजेक्शन जो है ना, वो एक वजह हो जाती है बैकएक की ऐसे पेशेंट्स में। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात की, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीचिंग पर्पस के बैकएक को याद रखना चाहिए कि वन ऑफ द यंग पेशेंट है। मैंने इसीलिए कमेंट भी किया कि यंग पेशेंट में अनलाइकली है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करनी है तो बेसलाइन डॉक्यूमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन आई एग्री कि कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है, दैट मे बी द कॉज ऑफ द बैकएक। कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स जो प्रेग्नेंट होते हैं बहुत कॉमनली बैकएक के साथ कंप्लेन के साथ आते हैं,
दूसरा ये है कि यू हैव राइटली सेड कि मोस्ट ऑफ द सी सेक्शंस आर कैरिड आउट विद स्पाइनल एनेस्थीसिया, और उसमें ये बहुत कॉमन कंप्लेन होती है कि पोस्ट ऑपरेटिव बैकएक उन लोगों को रहता है। तो यू आर राइट। जी भुट्टा साहब, इसमें एक और चीज जो आप ध्यान में रखें कि जो जिस कंटेक्स्ट में बैक एक की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है टेनोफोविर की दो फॉर्मुलेशन है, एक टीडीएफ है टेनोफोविर डेपोवॉक्सिल फ्यूमेरेट, और एक आपकी टेनोफोविर एलाफेनामाइड है। तो टीडीएफ है उसकी बोन से रिलेटेड इश्यूज हैं, और आप जब देख रहे हैं पेशेंट को ट्रीटमेंट, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, ये 3-6 महीने का ट्रीटमेंट तो है नहीं है हेपेटाइटिस सी की तरह। तो दैट्स वाई कि वो थोड़ा सा यू जस्ट नीड टू बी अ बिट केयरफुल के बैक एक इज प्रॉपर्ली सॉर्टेड आउट। और अगर आपको मिल ही जाता है, जो कि चांसेस बहुत कम है जिससे आप कह रहे हैं, तो फिर मे बी कि आप टेनोफोविर एलाफेनामाइड प्रेफर करें इन दिस सिनेरियो। जी सर, थैंक यू। Any other question or comment regarding this case? ज़ीशान, जी सर, मुझे एंटाकाविर का कोई डेटा है? सॉरी, एंटाकाविर का कोई डेटा है ब्रेस्ट फीडिंग के साथ? I am not that I have come across, क्योंकि एंटाकाविर क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर तो क्लियर इसके टेराटोजेनिसिटी का है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के साथ आई हैवंट कम अक्रॉस एनी डेटा। बट जो टेनोफोविर का डेटा है वो HIV का काफी एक्सटेंसिव डेटा मौजूद है, तो फॉर दैट मैटर मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने टेस्ट ये किया भी मैंने होगा। अभी देखा है, मैं जल्दी से फार्मा गाइड खोली है, फार्मा गाइड में लैक्टेशन में इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड और नॉट रिकमेंडेड, सो जस्ट I'll look into it further, but ये फार्मा गाइड ये कह रही है। जी, there was a question, somebody was speaking, I'm sorry I interrupted. Probably Mishal was asking something. जी सर, मेरी पूछना था कि अब जैसे पेशेंट हमारे पास आई है आफ्टर 22 डेज ऑफ डिलीवरी, तो हमारे पास एक्टिव इम्यूनाइजेशन ऑफ बेबी का जो टाइम था वो तो गुजर गया, पैसिव इम्यूनिटी का कोई इसमें कुछ है? इसकी तो कोई वो नहीं कर सकते, मतलब वो कर सकते हैं ना? और अगर बेबी की स्क्रीनिंग करनी है। जी, अब एक्सीलेंट क्वेश्चन। इसके अलावा कोई क्वेश्चन इसके अलावा है? वो कब तक करेंगे? जी, अब आपने तीन क्वेश्चन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन और बेबी की स्क्रीनिंग कब की जानी चाहिए, 3 क्वेश्चंस हैं। एक तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज विद वैक्सीन, पैसिव इम्यूनाइजेशन इज विद एचपिग। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन का टाइम गुजर गया, 21 दिन के बाद जब पेशेंट आपके पास आया है तो आप पैसिव इम्यूनाइजेशन नहीं करनी, क्योंकि एक्सपोजर हो चुका होगा तो ट्रांसमिशन हो चुकी होगी, तो यू डोंट हैव द विंडो फॉर दैट। There is no point in giving HB to this patient के apparently immunoglobulin पे। वैक्सीनेशन का टाइम कभी गुजरता नहीं है, ठीक है ना? वैक्सीनेशन का टाइम जो है वो रहता है आपका थ्रू आउट द लाइफ। आपके पास 70 साल में भी आता है एक पेशेंट हेपेटाइटिस सी के साथ, तो उसको भी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगा देनी चाहिए, जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। लेकिन स्क्रीनिंग कब करनी चाहिए? बच्चे के अंदर जो स्क्रीनिंग है वो 6 माह तक हमें पता है कि बच्चे के अंदर मदर की एंटीबॉडीज जो है वो सर्कुलेट कर सकती हैं, और इट कैन बी फॉल्सली पॉजिटिव विद दैट। और जो बच्चे की स्क्रीनिंग का टाइम होता है वो दैट इज प्रॉब्ली समबडी हैव कमेंटेड इन द चैट एज वेल, व्हिच आई हैव सीन थ्रू, कोमल probably have 18 to 24 months, that's correct. I would just say कि 12 to 24 months is the time when we are going to screen. लेकिन is this value clinically valuable है? With all practical purpose, but the time we suggest कि screen करें, that is the time कि आप उसको 6 साल की उम्र पे से 12 साल की उम्र के दौरान स्क्रीन करें, क्योंकि by that time अगर आप 18 महीने या 12 महीने के बच्चे को स्क्रीन करते हैं तो that would add on anxiety to the parents, but that's they don't have a solution for pediatric age group. ठीक है, 3 साल से ऑनवर्ड जो है जो इंटरफेरॉन है दैट इज अवेलेबल, और जो इसका इंटरफेरॉन अल्फा 2b है वेट बेस्ड, जो दैट इज रिकमेंड अप्रूव फॉर द पीडियाट्रिक, और 3 साल से ऑनवर्ड है। तो 3 साल से पहले अगर आप स्क्रीन करते हैं तो आपके पास ट्रीटमेंट ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है, इफ यू वांट टू ट्रीट दैट चाइल्ड कि उसको हेपेटाइटिस बी के लिए ट्रीट करना है। सो ऑल प्रैक्टिकल पर्पस जब तक हमारे पास 2b अवेलेबल था, वी यूज्ड टू स्क्रीन एट 3 ईयर और अबव एज ग्रुप, उससे पहले स्क्रीन करने से बहुत हमें बेनिफिट नहीं होता था। एज फार एज वैक्सीनेशन इज कंसर्न, वी हैव टू जिसे कहते हैं एडवोकेट
फॉर द वैक्सीनेशन अभी जितनी भी EPI वैक्सीनेशन हैं उसमें अगर फर्स्ट 3 डोजेस के अंदर हेपेटाइटिस बी इन एनी केस लगता है, वी ऑलवेज कीप ऑन रिकमेंडिंग के बर्थ डोज वैक्सीनेशन करें। और हमें एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए कि बी की बर्थ डोज वैक्सीनेशन जरूर लग जाए। पाकिस्तान इज अमंगस्ट दोज जो है कंट्रीज जिसमें बर्थ डोज वैक्सीनेशन के ऊपर हम बहुत पीछे हैं मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन वाली डिजीज के अंदर। और इट इज मोस्ट ऑफ इवन जहाँ अवेलेबल है वहाँ पे भी नहीं लग रही है। आई एम प्रैक्टिसिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट टर्शियरी केयर सेटअप इन कराची। हमारे यहाँ बर्थ डोज वैक्सीनेशन का अपटेक बहुत अच्छा नहीं है, एचबिक का अपटेक इतना अच्छा नहीं है। वी रियली गेट कॉल्स फ्रॉम गायनी के पेशेंट हम डिलीवर करने जा रहे हैं कल, अब आप इसको एचबिक लगा दें या बर्थ डोज वैक्सीनेशन अरेंज कर दें हमें कि हम इसको लगा दें। सो इवन इन दिस काइंड ऑफ ए सेटअप वी आर फेसिंग दिस इशू। जो आप फार फ्लंग एरियाज है वहाँ कैसे बात कर रहे हैं प्राइमरी केयर सेटअप्स के ऊपर। सो वी नीड टू एडवोकेट फॉर दैट एज अ सोसाइटी। आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई कीप ऑन टॉकिंग ऑन दिस फोरम कि भाई हमारे पास अवेलेबल होती है, कोई हमसे कहेगा तो हम एचबिक एक टाइम पे अवेलेबल थी, हमने गायनी में अवेलेबल कपबोर्ड बनवाया वहाँ पे और वहाँ पे रखवाई कि आप इसको कंज्यूम करें जो मदर्स हैं जो पॉजिटिव आती हैं, क्योंकि जेपीएमसी वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर जहाँ पे B और C पॉजिटिव मदर्स को रेफर किया जाता है कि आप वहाँ चले जाएं डिलीवर करने के लिए। सो यस जो है इसकी स्क्रीनिंग जो है आइडियली शुड बी एट 3 years above, क्योंकि उस टाइम पे ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है इफ यू वांट टू ट्रीट दैट चाइल्ड। बट 12 to 18 months इज ओके कि जिस पे आप स्क्रीन कर सकते हैं बच्चे को। Komal have a question probably here in response. If it is negative at 18 months of age, then we should screen at 6 years of age. Probably not, क्योंकि अगर आपने वैक्सीन कर दिया है आप वैक्सीनेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं anti-HBs, और अगर नेगेटिव है तो यू कैन उसको दोबारा बार बार स्क्रीन करने की कोई एडिशनल जिसे कहते हैं वो नहीं बनती नहीं है कि बार बार उसको आप स्क्रीन करें। Zeeshan, there is a case में आप I just उसको मैं पढ़ता हूँ and then so an interesting one. 24-year-old medical student on blood donation program came out surface antigen positive 2 years back. On consultation, she had DNA, hepatitis B DNA, which was 117. So CBC is fine. ALT is 30. The rest is all normal. E antibody is reactive and E antigen is negative. Ultrasound is unremarkable. January 2021, viral load is 132. Then second PCR viral load was 38. And on third PCR, it was not detected. इसकी timelines नहीं है, but probably ये उसके बाद का follow-up है. Surface antigen was also negative in May 2022, and surface antibody is 9.38. इसकी liver elastography में 7 है. इसका जो liver stiffness है, delta is negative, alpha fetoprotein normal, HBC total is reactive, and on further 6 months follow-up, surface antigen is still negative, PCR is negative, and hepatitis B surface antibody is less than 2. So the question is regarding the vaccination. So अब ये Dr. Maria, probably she will be online. Maria, if you need to add anything. जी सर. जी please. जी मारिया. जी सर, ये मुझे एक पेशेंट मेडिकल स्टूडेंट का ही केस है और ये तो इस वजह से मैं जानना चाह रही थी. इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग केस. देखें इसमें आप जो फैक्ट्स को हम देखें इसको अगर आपने बनाया होता ना तो ये बड़ा ऑडियंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट केस है डिस्कस करने के लिए. we can keep it असद we can keep this case in अल्ताफ साहब जिसे कहते हैं ना या फरूकी साहब उसमें. लेकिन आई वुड रिस्पॉन्ड क्योंकि यहाँ क्वेश्चन किया गया है कि देखिए यंग मेडिकल स्टूडेंट. जी मारिया कुछ कहना चाह रही हैं. जी सर, मैंने थोड़ा डिस्कस भी किया था तो एवरीवन लाइक कि नहीं इतना जल्दी सरफेस एंटीजन नेगेटिव ही नहीं होता, लेकिन मैंने फिर देखा था तो फिर मैंने कहा मैं यहाँ पे पूछूंगी कि ये बहुत कम होता है सरफेस एंटीजन. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में है कि डिड शी रिसीव्ड एनी एंटीवायरल ट्रीटमेंट? नो सर, नीड ही नहीं थी. 137 बिलो 100 नीड नहीं. तो वो जो क्वेश्चन था ना, आप जो कमेंट था किसी का कि इतना जल्दी नेगेटिव नहीं हो जाता सरफेस एंटीजन,
दैट इज विद द मेडिकेशन। नेचुरल जो कोर्स है 90% ऑफ द हेपेटाइटिस बी रिजॉल्व बाय इटसेल्फ, ये उसी तरह का एक केस है कि आप देखें इसमें पॉजिटिव हुआ, वायरल ट्रांसमिशन हुई, माइल्ड इनफैक्ट एलएफटी डिरेंजमेंट तो हुई नहीं, थोड़ा बहुत पीसीआर पॉजिटिव आया एंड अल्टीमेटली पीसीआर कम होना शुरू हो गया, सरफेस एंटीबॉडी पॉजिटिव हो गई, एंटीजन नेगेटिव हो गई। दिस इज ए नेचुरल कोर्स ऑफ हेपेटाइटिस इन मोस्ट ऑफ द केसेस। हम जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस वाले देखते हैं क्लिनिक्स के अंदर, ये पेशेंट्स हमारे पास अक्सर आते नहीं है। ये मेडिकल स्टूडेंट थी तो शायद आ गई आपके पास, वरना अक्सर औकात ये पेशेंट्स जो है हम लोगों के पास आते नहीं है। ये पेशेंट को जो एक नेचुरल कोर्स फॉलो हुआ है कि एक ट्रांसमिशन हुई है वायरस की, वायरस आया बॉडी में, रिप्लिकेट हुआ, बॉडी ने इम्यूनिटी जनरेट की और उसके बाद वायरस को खत्म कर दिया, सरफेस एंटीबॉडी एंटीजन खत्म हो गई, सरफेस एंटीबॉडी डेवलप हो गई है। अब जो आपका क्वेश्चन कि क्या इसको वैक्सीनेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फॉर आइडियल पर्पस नो, बट बीइंग एज ए मेडिकल स्टूडेंट इसने प्रैक्टिस करनी होगी हेल्थ की, तो एंटीबॉडी का लेवल आपको मेंटेन रखना है अबव 10। वो एक दो अलग अलग चीजें हैं। फॉर द पर्पस ऑफ ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, एक पेशेंट जिसको वायरस आया और वायरस नेगेटिव हो गया और एंटीबॉडी पॉजिटिव हो गई, उसको किसी वैक्सीनेशन की अब जरूरत नहीं रह गई। लेकिन विद कोविड एक्सपीरियंस हमने देखा कि कोविड लोगों को हुआ और के बाद भी वैक्सीनेशन को बहुत ज्यादा जो है एडवोकेट किया गया कि शायद एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं होता तो वैक्सीनेशन से और बेहतर हो जाएगा। एंड वी सॉ दैट कि जिन लोगों को कोविड हुआ था और वैक्सीनेशन लगी थी, उसके बाद उनको दूसरी और तीसरी दफा भी कोविड हुआ तो उनको कोई इलनेस फॉर दैट मैटर उस लेवल पे नहीं हुई। सो विद दैट एक्सपीरियंस, इसके ऊपर कोई डेटा मौजूद नहीं है। विद सरफेस एंटीबॉडी लेवल लेस देन 10, being as a healthcare professional, yes, for that context this patient would need booster dose of vaccine. Single dose vaccine मेरा ख्याल है काफी होगी as a booster dose, not all 3 doses of vaccination. लेकिन अगर ये मेडिकल स्टूडेंट नहीं होती तो आई वुड नॉट हैव रिकमेंडेड हर बूस्टर डोज, क्योंकि सेल्फ जब एलिमिनेशन होती है हेपेटाइटिस बी की तो उसके अंदर आमतौर पे वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं रह जाती। सर माय क्वेश्चन इज दैट कि हैप्पी कोर तो पॉजिटिव है ना, तो हम कैसे इसको मतलब लगा सकते हैं वैक्सीन? कोर का कोई है इसमें रोल? एक्सपोजर तो है ना, देखिए मतलब कोर का पॉजिटिव होना और सीसीडीएनए का पॉजिटिव रहना, ये दो ऐसी चीजें हैं हेपेटाइटिस बी के साथ लगी हुई कि जिसका आंसर वक्त हमें देगा कि विद सीसीडीएनए कैन वी एवर से दैट कि ये खत्म हो गया था। एक्यूट हेपेटाइटिस में आमतौर पे सीसीडीएनए नहीं बनता। कोर एंटीबॉडी एक्सपोजर बता रही है कि इसको एक्सपोजर हुआ है, इसी वजह से सरफेस एंटीबॉडी जो इसकी पॉजिटिव है दैट इज सजेस्टेड। लेकिन हमने कोर को आप जनरल स्क्रीनिंग में नहीं करते। बहुत सारी जगहों पे जो है ना ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि 20 सरफेस एंटीबॉडी का जो टाइटर है वो 10 से ऊपर होना चाहिए। पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं होता, बहुत सारी जगहों के ऊपर वहाँ कोर चेक नहीं होता, 20 सरफेस एंटीजन चेक होती है, एंटीबॉडी चेक होती है। सरफेस एंटीजन नेगेटिव है तो फिर आप इसका जो है वो एंटीबॉडी को 10 से ऊपर ले आए। लेकिन अगर ये हिस्ट्री देती है फॉर सरफेस PCR positive, so less than 200 PCR and in some guidelines less than 100 PCR is good enough to allow her to work in absence of B surface antibody titers. जी सर। जी मारिया, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक हम इसको दोबारा भी रखेंगे। आप जरा काइंडली शेयर कर दीजिएगा उजैर के साथ अगर जो भी डिटेल्स फर्दर भी हों। इसमें एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये इसकी जॉब की नेचर है। शी इज अ मेडिकल स्टूडेंट। कोर एंटीबॉडी तो चलो हमें बताती रहेगी कि ये एक्सपोज रही है, और अभी तक सरफेस एंटीजन सीरो कन्वर्जन डॉक्यूमेंट नहीं हुई, और सरफेस एंटीजन सीरो कन्वर्जन को हमें फॉलो करना पड़ेगा, और अगर ये नहीं होती तो हमें इसके डीएनए को क्लोजली फॉलो करना पड़ेगा। असद मेरा ख्याल है सीरो कन्वर्जन इसकी डॉक्यूमेंट हो गई है ना, इन्होंने कहा सरफेस एंटीजन नेगेटिव हो गई है और सरफेस एंटीबॉडी पॉजिटिव आ गई है। जो सेकंड रिपोर्ट है उसमें लेस देन 2 है। इसकी 2 इन्होंने दी हुई है, एक 9.38 है, यूजुअली वो 10 तक होती है, मुझे अब उसकी वैल्यूज का पता नहीं, और जो आखिरी लिखी हुई है 10 तक की होती है। तो इसलिए आई वुड स्टिल रिमेन कंसर्न। वैक्सीनेशन तो अभी नहीं बनती, लेकिन आपको इसको जो है ना इसको क्लोजली फॉलो करना पड़ेगा, और स्पेशली अगर उसने मेडिकल में फॉलो भी करना है
इस तरह जो 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 जो, जो वो लोग जो एक्सपोजर प्रोन होते हैं या जिनसे आगे पेशेंट्स को डील करना है, वी जस्ट नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। तो बहरहाल इसको भी डिस्कस करेंगे। आई कैन नॉट आउटराइट रिकमेंड कि आप हम इसको कोई ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, क्योंकि पीसीआर नेगेटिव है और सरफेस एंटीजन भी नेगेटिव है, बट वी स्टिल नीड टू कीप एन आई ऑन हर। तो आप इससे शेयर कर दीजिएगा, मे बी कि ये ऑलरेडी हमारे पास, तो नेक्स्ट टाइम वी विल, नेक्स्ट केस डिस्कशन पे वी विल हैव दिस केस डिस्कस्ड अगेन। जी, एनीथिंग एल्स? सर जी जी एक्चुअली वो जहाँ पे कर रही हैं फॉलो अप, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने उनको एक बूस्टर डोज का एडवाइस किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस करना वो किया कि आपके क्या ओपिनियंस हैं। I won't agree with this. Yeah, that remains a question of debate रहेगी हमारी, क्योंकि जिस तरह असद ने कमेंट किया ना कि जो सरफेस एंटीबॉडी लेवल्स हैं, they have never crossed 10, तो can it be technically labeled as जो है ना सीरो कन्वर्जन? To me, more than 10 is for the vaccination status, adequate antibody response. For zero conversion definitions, I have to recheck. Probably Asad will also, इसी वजह से हम बात कर रहे हैं कि इसको हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे लिटरेचर रिव्यू के लिए कि what levels of surface antibody actually qualifies for zero conversion. तो अगर zero conversion practically हो चुकी है, तो सीरो कन्वर्जन के साथ लोअर एचपी सरफेस एंटीबॉडी लेवल्स को बूस्ट करने के लिए if somebody wants to try it, again there is no guidelines, no everybody have got, ये एक ओपन वो जिसे कहते हैं ना वो केस है कि क्या वैक्सीन काम करती है, वैक्सीन की इंडिकेशन बनती है एक ऐसे पेशेंट में जिसको वायरस ऑलरेडी एक्सपोज हो और एंटीबॉडी पॉजिटिव हो, जनरली सेइंग नो। अगेन इसका प्रोफेशन ऐसा है कि एक्सपोजर प्रोन है, if somebody wants के इसके एंटीबॉडी लेवल्स बढ़ा देंगे तो शायद प्रैक्टिस को अगेन द बॉर्डरलाइन केस एंड एक ग्रे एरिया है, एवरीबॉडी कैन हैव देयर ओन ओपिनियन, अभी इसके ऊपर डेटा मौजूद नहीं है। ओके सर, थैंक यू। Thank you very much. Very nice and interesting discussion. Ji, anything else or? Ji Kiran, over to you. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Zeeshan. Dr. Maria, इसी वजह से we do encourage cases from the participants. और अगर आपने हमें cases आपने present करने हो, you can ask for the format as well, or otherwise we can also present it for you. We are currently having a few other programs. Sorry Kiran, Maria, एक और जो केस है इसको please share the details, तो हम इसको next में रखेंगे क्योंकि we just about to finish, तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी, इसको हम इतना डिटेल में नहीं ले सकेंगे। जल्दी रैप अप करेंगे, ये वाला केस भी प्रॉब्लम ये सर ईशान से डिस्कस्ड है। या आज सुबह इन्होंने मुझसे डिस्कस किया था, लेकिन इसको मेरा ख्याल है हम नेक्स्ट पे रखेंगे। दैट अगेन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। जी आप काइंडली इसकी फॉर्मेट बना के हमसे शेयर कर दें तो विल बी रियली ग्रेटफुल। थैंक यू। थैंक यू। इसके अलावा अपकमिंग प्रोग्राम्स में हमारा आईबीडी एक्यू का सेशन आ रहा है, आईबीडी इन पीडियाट्रिक्स, इट्स ऑन वेडनेसडे 31st May, और वी हैव एन इंटरनेशनल फैकल्टी। आई थिंक उजैर विल शेयर द लिंक्स विद यू फॉर रजिस्ट्रेशन। और प्रीवियसली जो हमारे सेशंस हैं वो दे आर ऑल अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल, आप उनको देख सकते हैं। वी आर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेपेटोलॉजी and Feroson's laboratories for the restricted educational grant, and our team at PARSA Trust and PARSA ECHO Pakistan. So Allah Hafiz for now. Uzair, you can call off the meeting.